बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। Which is under discussion is chapter 2, that is about transport in human and plants. We have been discussed earlier that what does the transport mean. Transport mean is the transference or the movement of material from one organ to another, and the transport system in humans is called as circulatory system. Circulatory system is composed of heart, blood vessels, and the carrier that transport the materials is blood. In our lecture 2, we are going to study the structure as well as function of heart and blood vessels. The SLO will achieve through this lecture is second one, that is to describe the structure and function of heart and blood vessels. The page 20, the topic 2.2 on page 20 will support us in our lecture. So, what a heart actually is? It's a muscular organ, means there is no bone. Present inside the left side of chest cavity above the diaphragm. It is the chest cavity. In chest cavity there are lungs, a pair of lungs. The heart is present at the left side. In the chest cavity, and below the heart there is a diaphragm. You all know what a diaphragm is. It is a muscular structure that supports in breathing. The size of heart is just of the size of a clenched human fist. अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो उसका जो साइज होगा वो आपके हार्ट का साइज होगा। अब हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। व्हाट आर कार्डियक मसल्स? हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हियर यू कैन सी कार्डियक मसल। दीज आर कार्डियक मसल फाइबर्स। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल with a solid nucleus inside them. It is one muscle fiber, it is other second, it's third, fourth muscle fibers. Our heart is enclosed in a very injury-proof system inside a layer which is called pericardium. Pericardium contains fluid that cushion the heart from external injuries. Now comes to the internal structure of heart. Heart is divided basically into 4 major chambers. The first chamber is right atrium and the second one is left atrium. These are the upper chambers which are also called receiving chambers. They receive the blood from the body and from the lungs. Right atrium is connected with 2 large veins, superior vena cava and inferior vena cava. These are the largest veins in body. These provide blood collecting from the body organs to the heart. Here deoxygenated blood is provided here. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि वो ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन सेल्स ने यूटिलाइज कर ली है।
यानी इस सेल्स में इस वाले ब्लड में जो ब्लू कलर में होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में फॉल करता है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद लंग्स, और लंग्स में ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेंगी। दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, second chamber. The third chamber is right atrium is right ventricle, as you can see here, and the fourth one is left ventricle. These are the pumping chambers. Both are the pumping chambers. Right ventricle receive blood from right atrium and left ventricle receive blood from left ventricle and the aorta. Atriums are also called, both atriums are called auricles as well. It is the plural form. The other difference between the two is atrium chambers, yani auricles, are smaller while ventricle chambers are larger. Ventricle chambers are strongest chambers. They are more strong. Than auricles. इनके स्मॉल होने की वजह से और लेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि इनकी वॉल्स थिक होती हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स की वॉल, ये वेंट्रिकल्स की वॉल थिक है। वेंट्रिकल्स थिक वॉल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग चैम्बर्स हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लड को पंप करना है। पंपिंग के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, जबकि रिसीविंग के लिए रिलेटिवली लेस फोर्स रिक्वायर्ड है। और एज यू नो ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स। जो राइट वेंट्रिकल है, इसने ये चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए होता है, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में पुश करता है, लंग्स की तरफ सेंड करता है, पंप करता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन आ जाए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप किया करता है, ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स इस ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो थे हार्ट के चैम्बर्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जिस आर्टरी के थ्रू बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है वो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, और उसे एओर्टा कहा जाता है। दिस इज द एओर्टा आर्टरी विच इज कनेक्टेड to all the organs in the body, and its purpose is, its function is to provide oxygenated blood to all the cells in the body. It is connected with the network of arteries as well. अब हार्ट के चैम्बर्स तो हमने देख लिए, लेकिन ये चैम्बर्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? तो हार्ट के ये चैम्बर्स चूंकि 4 चैम्बर्स हैं, तो there are 4 valves which connect to one chamber to another as well as prevent the backflow of blood. यानी ये जो वेल्व्स हैं हार्ट में प्रेजेंट, ये एक डोर की तरह काम करते हैं, वन वे डोर की तरह, जिसमें से ट्रैफिक आ तो सकती है, जिसमें से ब्लड रिसीव तो हो सकता है, लेकिन वो उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकता। ये 4 वेल्व्स, ये जैसे एक वेल्व ये है, ये पल्मोनरी वेल्व है, मैरिटल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, 1, 2, 3 and the 4. These are the 4 valves that act as a one-way door. यानी ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फेवर करते हैं। यहाँ पे आप वेल्व ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ये फर्स्ट वेल्व है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, दिस वन विच कनेक्ट द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन।
to lungs for oxygenation. सो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ट्राइकस्पिड वेल्व है ये, और ये वेल्व आपका पल्मोनरी वेल्व है, क्योंकि इसने लंग्स को ब्लड ट्रांसफर करना है फॉर ऑक्सीजनेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व. थर्ड वेल्व, दिस वन इज द एओर्टिक, इज द मैरिटल वेल्व, मिट्रल वेल्व सॉरी. अब मिट्रल वेल्व क्या है? मिट्रल वेल्व कनेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से. लेफ्ट एट्रियम इज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कमिंग फ्रॉम द लंग्स. The fourth valve is aortic valve, this one. लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है एओर्टा के थ्रू. तो वो वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा से कनेक्ट करता है उसे एओर्टिक वेल्व कहा जाता है. दिस वन इज द एओर्टिक वेल्व, जो कि एओर्टा के लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है. सो ये वो चार वेल्व्स हैं जो ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फेवर करते हैं और इनका बैक फ्लो प्रिवेंट करता है. यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो राइट एट्रियम में नहीं जा सकता, जबकि राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है. इसी तरह एओर्टा से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, जबकि ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ मूव करेगा. इसी तरह ये जो मिट्रल वेल्व है ये लंग से तो ब्लड को अलाउ करेगा, लेकिन एट्रियम में आने के बाद ब्लड को वापस लंग्स में जाने से रोकता है, वापस लंग्स में नहीं जाने देता. ये जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है ये लार्जेस्ट वेन्स हैं जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं. अब हम पढ़ते हैं हार्ट के फंक्शंस. हार्ट के फंक्शंस को हम कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं. इसे हम हार्ट की, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की वर्किंग डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम हार्ट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. अब हम आते हैं अपने एक दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक अहम ऑर्गन्स की तरफ, जो कि है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जैसे कि हम जानते हैं नेटवर्क ऑफ वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाए हुए हैं. ये ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं ब्लड को और उसे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं. पूरी बॉडी में का हर पॉइंट इन ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है. 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं ये. एक को कहा जाता है आर्टरी विच इज रेड इन कलर. दूसरी टाइप वेन विच इज ब्लू इन कलर. एंड द थर्ड वन इज द जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन. दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज. Here you can see the capillaries at the junction where जहाँ पे arteries और veins join करते हैं वहाँ पे ये capillaries एक बारीक thin walled vessels present होती हैं. उनका ये network एक ज़्यादा conspicuous network present है, वो capillaries हैं. अब arteries जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं veins के मुकाबले में ज़्यादा thin है, thick है. और इसकी वजह क्या है कि इसमें जो circular smooth muscles हैं या इलास्टिक फाइबर्स हैं उनकी लेयर ज़्यादा थिक है, जबकि वेन्स में उनकी लेयर थिक नहीं है. सो आर्टरीज पोजेस थिक मस्कुलर वॉल्स और इसके थिकनेस की वजह क्या है कि इसमें स्मूथ मसल्स की लेयर्स ज़्यादा हैं. दे कैन रेजिस्ट द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज में चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में हाई प्रेशर के साथ रिलीज किया जाता है. सो इन ऑर्डर टू बियर दैट हाई प्रेशर आर्टरीज आर थिक वॉल्ड. जबकि वेन्स में चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस लेके जाने के लिए रिलेटिवली लेस प्रेशर रिक्वायर्ड है. सो वेन्स आर थिन वॉल्ड. वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. आर्टरीज में ब्लड हार्ट की तरफ से आता है, जबकि वेन्स
ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स हार्ट। और ये फ्रॉम द हार्ट। The biggest artery you know is the aorta, which leaves the heart and divides into smaller arteries. एक और वेन्स की स्पेशलिटी ये है कि वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, जबकि आर्टरीज को बैक फ्लो की ज़रूरत नहीं है। आर्टरीज को बैक फ्लो के लिए हाई प्रेशर ही उसके लिए काफ़ी है। हाई प्रेशर ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकता है। अब जो कैपिलरीज हैं वो माइक्रोस्कोपिक थिन वॉल्ड वेसल्स हैं दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। Here you can see the arteries. Arteries transfer their deoxygenated blood to veins through these capillaries, through these junctions. आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि आर्टरीज ब्लड वेसल्स के फंक्शन में सबसे पहले आर्टरीज को स्टडी देखते हैं। आर्टरीज चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज में ब्लड हार्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, सो ये वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती हैं थ्रू इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ताकि उसमें दोबारा ऑक्सीजन को फिल किया जा सके। और आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है मेजर आर्टरी एओर्टा। कैपिलरीज टेक ब्लड थ्रू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। और जब आर्टरीज में मौजूद ब्लड में ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है ऑर्गन्स या टिश्यू की तरफ से, तो उन्हें कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं ऑर्गन्स की तरफ या टिश्यूज की तरफ या इंडिविजुअल सेल्स की तरफ। ये सेल्स जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है वेन्स को। और वेन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लेके आती हैं थ्रू इंफीरियर and superior vena cava. So this was the structure of circulatory system that is composed of heart and blood vessels. Next comes the homework. First open your text exercise 1 on page 24 and its remaining part is on page 25. The part 1 of test exercise is fill the circle of the correct option against each statement. आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और each statement is provided with 4 different options. और इन 4 options में से आपने right answer को find out करना है. Number 1 is appropriate scientific term for circulatory system is, circulatory system को क्या कहा जाता है? Lymphatic system, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम या लिम्फोवैस्कुलर सिस्टम। जो भी राइट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ हार्ट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या स्केलेटल टिश्यूज। आप हार्ट मसल्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं, सो आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। द लार्जेस्ट, थर्ड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट वेन इन द ऑफ द बॉडी इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन या एओर्टा। ये भी आप देख चुके हैं कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है, आप उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 भी आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 5 भी आप सॉल्व करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, मारिया वांट्स टू टेल द क्लास अबाउट वेल्व्स। मारिया इज अ टीचर एंड ही वांट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द वेल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट। हाउ विल शी डिफाइन द टर्म। अब वेल्व्स की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे आपको पूछी जा रही है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। आप वेल्व्स को देख भी चुके हैं और उसे पढ़ भी चुके हैं, लिहाजा आप करेक्ट डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। द स्पेशल ओपनिंग्स थ्रू विच एट्रिया आर इंटरकनेक्टेड फॉर ब्लड ट्रांसफर। एट्रिया आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑरिकल।
और नंबर बी ऑप्शन है द स्पेशल ओपनिंग्स थ्रू विच वेंट्रिकल्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर ब्लड ट्रांसफर। क्या ये वेल्व्स ब्लड वेंट्रिकल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं? या फिर थर्ड ऑप्शन में देखिए, वेल्व्स आर द स्पेशल ओपनिंग्स थ्रू विच हार्ट चैम्बर्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर ब्लड ट्रांसफर। या ये हार्ट चैम्बर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, या फिर हार्ट चैम्बर्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर गैसियस एक्सचेंज। इनका क्या पर्पस है वेल्व्स का, वो आप फाइंड आउट करेंगे और इसको राइट सर्कल को फिल करेंगे। नंबर 5th MCQ है द ब्लड दैट वेन्स रिसीव फ्रॉम द बॉडी इज। वेन्स में किस टाइप का ब्लड होता है? क्या ये ऑक्सीजनेटेड और रेडिश होता है? ऑक्सीजनेटेड लेकिन ब्लूश कलर में होता है, डीऑक्सीजनेटेड और रेडिश कलर में, या डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लूश कलर? आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको फौरन से मालूम कर सकेंगे कि किस टाइप का ब्लड वेन्स में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2 क्वेश्चन है हार्ट इज कंपोज ऑफ चैम्बर्स, नेम दीज 4 चैम्बर्स। आपको हार्ट के चैम्बर्स दिखाए गए थे, आप उनका नाम लिखेंगे। नंबर 3 इज हाउ इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंटेड इन हार्ट। हार्ट में बैक फ्लो ऑफ ब्लड कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, आप उनको नेम आउट करेंगे। पार्ट बी में से सिर्फ आप ये 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब आप आइए अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में से आप नंबर 2 MCQ पहले सॉल्व करेंगे। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, इज दैट एओर्टा और वेना केवा और पल्मोनरी आर्टरी और आर्टीरियोल्स। सो विच इज द राइट आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट। अब नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट एन ऑर्गन टू सर्व एज कैरियर फॉर ब्लड। अब ब्लड कैरी करने के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गन यूज नहीं होता, वो आप फाइंड आउट करेंगे। क्या वो लंग्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज? आप सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे राइट आंसर। अब आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड होता है? नंबर 4th MCQ है व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज कैरिड थ्रू आर्टरीज। अब आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड होता है? क्या ये ऑक्सीजनेटेड और रेडिश है, ऑक्सीजनेटेड और ब्लूश है, डीऑक्सीजनेटेड एंड रेडिश, या डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लूश? इनमें से जो भी राइट आंसर है आप उसको फिगर आउट करेंगे। अब आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। बाकी MCQ हमारे आज के लेक्चर से रेलेवेंट नहीं है, सो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, व्हाट इज पेरिकार्डियम, व्हाट इज इट्स फंक्शन? पेरिकार्डियम वाज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द हार्ट, सो as we say it is a protective layer, so what should be its function? You have to find out and write it in your notebooks. Number 3 question भी आप solve करेंगे। Differentiate between artery and vein. There are 3 types of blood vessels, 2 of which are arteries and veins. What is the difference between the both? You have to find out and write it down. Next, number C part देखिए। नंबर सी पार्ट के क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारा आज का लेसन था कि हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन और ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफाइन करना था, वो आप सॉल्व करेंगे और विद डायग्राम्स। आपका कोई भी आंसर अगर डायग्राम्स के साथ होगा तो वो ज़्यादा अपीलिंग भी होगा और मार्क गेनिंग भी होगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का और आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस का पता चलता है। अब अपना होमवर्क आप सॉल्व करेंगे समर पैक में से। समर पैक में से आप एक्टिविटी 2.1 सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की। एक्टिविटी 2.1 है कि लेबल द सेट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, कलर द पार्ट कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन रेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पर्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन ब्लैंक स्पेसेस में हार्ट के पार्ट्स जिनको पॉइंट आउट किया गया है उन्हें आइडेंटिफाई करके लेबल करेंगे और फिर कलर्स के थ्रू बताएंगे कि किस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका पार्ट 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने अब जिन पार्ट्स को लेबल किया है यहाँ पे उनका फंक्शन बयान करेंगे। वेना केवा का क्या फंक्शन है, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, इनका जो भी फंक्शन है वो आप बयान करेंगे। अब अगर आप MCQ सेक्शन देखिए अपने समर पैक का तो MCQ नंबर 1 है जो आप सॉल्व करेंगे। द हार्ट चैम्बर्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर ब्लड ट्रांसफर थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, valves,
और सेप्टम। अब हार्ट चैम्बर्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं किस स्ट्रक्चर के साथ, आप उसको फाइंड आउट करेंगे और रीज़न भी बताएंगे कि आपकी चूज करदा आंसर ही क्यों करेक्ट है। इसमें अगर आप लोकेशन डिस्कस करें तो आप अपनी रीज़न को, अपने आंसर को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज़्यादा किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, इंफीरियर वेना केवा में, सुपीरियर में, एओर्टा में या पल्मोनरी वेन में। और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको लोकेशन के साथ साथ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फंक्शन भी बताना होगा। नंबर 3 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेट द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यू टू देयर स्पेसिफिक वॉल स्ट्रक्चर। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर किस टाइप ऑफ वेसल में प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में या एओर्टा में। आप फाइंड आउट करेंगे और इसके रीज़न बताते हुए व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन को सॉल्व करते हुए आप उसकी रीज़न बताएंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप में ब्लड वेसल की हाई ब्लड प्रेशर की क्या ज़रूरत है। नीड बताएंगे आप, नीड फॉर थिक वॉल्स, तो आप इजीली इसके जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लो इज अलाउड इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर्स में किस तरह का ब्लड फ्लो होता है, क्या ये यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या टेट्रा डायरेक्शनल। आप इसका भी राइट आंसर फाइंड करने के बाद इसकी रीज़न लिखेंगे और इसकी रीज़न लिखते हुए आप इसके नुकसानात बताएंगे कि अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ब्लड ना हो तो क्या नुकसान होगा। इनटू विच नंबर 5 MCQ है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और नंबर 6 MCQ भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए और MCQ नंबर 9 आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनमें से आपने वो ब्लड वेसल आइडेंटिफाई करनी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड प्रेजेंट होता है। वो कौन सी हैं, क्या वो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और वेना केवा है। जो भी राइट आंसर है आप उसको लिखेंगे और फिर उसकी रीज़न भी देंगे। इसकी रीज़न देते हुए आप पर्पस लिखेंगे उस आर्टरी का, यानी अगर आपने वेन्स को चूज़ किया है तो आप वेन का पर्पस बताएंगे, कैपिलरीज को चूज़ किया तो कैपिलरीज का पर्पस या फंक्शन बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ समर पैक के। फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एट्रिया। एट्रियम आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड वेंट्रिकल्स एज वेल। आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताएंगे। इनकी लोकेशन में डिफरेंस होगा, इनकी लोकेशन में, फंक्शन में और किस टाइप ऑफ ब्लड में। और इनकी वॉल थिकनेस में। साइज में। ये 5 पॉइंट अगर आप डिफरेंस में बयान कर देते हैं तो आप इसका आंसर कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिटेल से पढ़ा है, आप उसे यहाँ भी बयान कर सकते हैं, बयान करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इन वेन्स एंड आर्टरीज। अब आर्टरीज और वेन्स का अपना अलग अलग मखसूस स्ट्रक्चर है और ये मखसूस स्ट्रक्चर इनमें आने वाले ब्लड के प्रेशर को टॉलरेट करता है। अब किस टाइप का ब्लड प्रेशर वेन्स में प्रेजेंट है और किस टाइप का आर्टरीज में प्रेजेंट है आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ वेल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वेल्व्स क्या काम करते हैं, वो आप बयान करेंगे। Next, number 5th question is, how do you distinguish between the functional roles of aorta and vena cava? Aorta is the largest artery and vena cava is the largest vein of the body. So आप इन दोनों का functions में difference बयान करेंगे। यहाँ हम अपना second SLO achieve कर चुके हैं। That was about the structure and function of heart and blood vessels. Next lecture में हम, जो कि lecture 3 होगा, उसमें हम circulatory system की working detail से discuss करेंगे। Thank you very much.